آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اباؤٹ لین کیبل کے بارے میں۔ سی سی ٹی وی میں ہمیں کون سی لین کیبل استعمال کرنی چاہیے اور مارکیٹ میں کتنی قسم کی لین کیبل اویلیبل ہیں۔ لین کیبل کیٹ 5 یا کیٹ 6 یا کیٹ 5E، بہت ساری کنفیوژن ہے۔ اتنے قسم کے کیبل آتے ہیں اور کون سا کیبل کہاں استعمال ہوتا ہے ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم تو صرف مارکیٹ جاتے ہیں اور کیٹ 6 کیبل اٹھا لاتے ہیں۔ تو چلو آج ہم اس بارے میں بات کریں گے اس ویڈیو میں کہ کیٹ 5، کیٹ 6، کیٹ 5E، کیٹ 6A اور کیٹ 7A کیبلز کیا ہوتے ہیں اور یہ سب کیبلز کہاں استعمال ہوتے ہیں اور ان کے اندر ہم کتنا ڈیٹا ٹرانسفر کر سکتے ہیں اور کون سی کیبل کس لوکیشن پر اچھے سے ورک آؤٹ کرے گی۔ تو چلتے شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو۔ میرا نام ہے عدیل محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سناپی سرویلنس۔ تو ہم بات کرتے ہیں لین کیبل کے بارے میں۔ تو لین کیبل کتنے ٹائپس کے آتے ہیں؟ تو لین کیبل کے بارے میں شروع کروں تو پہلے کیٹ 3 کیبل آتا تھا جو اب نہیں آتا۔ ابھی کیا آتا ہے؟ تو ابھی کیا اویلیبل ہے؟ ابھی ہمارے پاس اویلیبل ہے کیٹ 5، کیٹ 5E۔ دوستوں آپ نے کئی بار باکس پر دیکھا ہوگا کیٹ 5E لکھا ہوا ہوتا ہے۔ دوسرا آتا ہے کیٹ 6 اور کیٹ 6A اور کیٹ 7 اور جو لیٹسٹ ابھی چل رہا ہے اور وہ ہے کیٹ 8۔ تو یہ کیٹ کیا چیز ہے؟ تو کیٹ بلونگ کرتا ہے کیٹیگری سے لیا ہے۔ کیٹ کا فل فارم کیٹیگری ہے اور یہ 5، 6، 7، 8 جو چل رہے ہیں وہ ہیں اس کے ورژن۔ تو کیا ڈفرنس ہے دوستوں؟ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کیٹ 5 کے بارے میں۔ کیٹ 5 کے اندر صرف 2 پیئرز ہوتے ہیں اور ان کیبلز میں 100 Mbps کا ڈیٹا ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ اس کی جو لینگ ہے کیٹ 5 کیبل کو ہم 100 میٹر تک لینگ کر سکتے ہیں، مطلب 100 میٹر تک کوئی ڈیٹا انٹرپٹ نہیں ہوگا۔ اس میں ہمیں جو بینڈوڈتھ ملے گی وہ 100 میگا ہرٹز تک ہوگی۔ جو کیٹ 5 کیبل ہے وہ اب مارکیٹ سے بالکل آؤٹ ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی جو ISP ہوتے ہیں مطلب انٹرنیٹ سروس پرووائڈر، جو کمپنیاں ہیں وہ اس کو یوز کرتی ہیں، کیونکہ ان کو کیا کرنا ہوتا ہے جہاں پر ان کا سوئچ لگا ہے، جنکشن لگا ہے، وہ وہاں سے ہمیں ایک کیبل انٹرنیٹ کا دیتے ہیں اور وہ انٹرنیٹ اتنا ہوتا ہے کہ 100 Mbps سپیڈ ہوتی ہے، کسی کی 20 Mbps سپیڈ ہوتی ہے اور کسی کی 50 Mbps سپیڈ ہوتی ہے۔ رائٹ، وہاں پر یہ کیبل آسانی سے کام کر جاتا ہے، اس لیے یہاں پر کیٹ 5 کیبل کو یوز کیا جاتا ہے۔ اس کیبلز میں 2 ہی پیئر ہوتے ہیں جو وہ یہ یوز کرتے ہیں، مطلب 1، 2، 3، 6۔ اس کے بارے میں پھر کبھی بات کریں گے۔ اس میں 4 تاریں ہی یوز ہوتی ہیں جس سے ان کا کام بہت آسان اور سستے میں ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ بہت سستا ہوتا ہے اس لیے ان کو کافی بینیفٹ ہو جاتا ہے۔ دوستوں اب ہم بات کرتے ہیں کیٹ 5E کے بارے میں۔ تو کیٹ 5E میں ایسا کیا نیا لے کر آیا ہے؟ کیٹ 5E کے اندر سب سے پہلی جو ڈفرنس ہے وہ ہے یہاں پر یہ کیبل 4 پیئر ہو جاتی ہے۔ اس میں 2 پیئر تھے، یہاں پر 4 پیئر ہو جاتے ہیں۔ دوسری چیز اس میں جو ڈیٹا ٹریول کرواتے ہیں وہ ہوتا ہے 1 Gbps، یعنی 1000 Mbps کا ڈیٹا ہم اس میں ٹریول کروا سکتے ہیں۔ مطلب اس کیبل کے اندر جو ڈیٹا ٹرانسفر کیا جا رہا ہے وہ ہم 1000 Mbps تک دے سکتے ہیں، چاہے ڈیٹا آ رہا ہو یا جا رہا ہو۔ 1000 Mbps کا ڈیٹا ہم اس میں آسانی سے ٹریول کروا سکتے ہیں۔ اس کیبل کی بھی جو لینتھ ہے اس کو بھی 100 میٹر تک لینک کیا جا سکتا ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اگر میگا ہرٹز کی میں بات کروں تو جو یہ بینڈوڈتھ کیری کرتا ہے وہ بھی 100 میگا ہرٹز کی میکسیمم بینڈوڈتھ آپ کو اس میں مل جائے گی۔ یہ جو کیٹ 5E جو کیبل ہے یہ کئی لوگ کام میں لے سکتے ہیں اور یہ ٹوسٹڈ پیئر ہوتی ہے۔ ٹوسٹڈ پیئر ہونے کی وجہ سے اس میں جو آپ کو 1 GB کا ڈیٹا مل رہا ہے وہ اسی وجہ سے مل رہا ہے۔ اور اس میں کیا الگ ہے؟ کیونکہ جو کیٹ 5 ہے اور کیٹ 5E میں جو ڈفرنس ہے وہ ہے اس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا جو پیئر آتے ہیں وہ ٹوسٹڈ ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے انٹرفیس جو ہوتا ہے یعنی کراس ٹاک جو ہوتا ہے وہ کافی کم ہو جاتا ہے۔ کیٹ 5 کے اندر تھوڑا لمبا ہوگا لیکن بہت کم ٹوسٹڈ کیا ہوگا اور کیٹ 5E کے اندر تھوڑا زیادہ ٹوسٹ کیا ہوگا جس کی وجہ سے ہمیں سپیڈ اچھی ملتی ہے۔ اس ٹائپ کی کیبل کو ہم بہت ہی جگہوں پر استعمال کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہمیں کیٹ 6 ہی کیبل یوز کرنا ہے۔ کیٹ 5 میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں 1 GB کا ڈیٹا آپ آرام سے لے سکتے ہیں اور اس میں 100 میگا ہرٹز کی بینڈوڈتھ بھی آپ کو مل جاتی ہے۔ تو یہ کئی جگہوں پر یوز ہو سکتا ہے، آپ اپنا پیسہ بچا سکتے ہیں، بہت سارے کیمراز اس کیبلز پر بھی چلا سکتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیں کیٹ 6 کیبل ہی چاہیے۔ اگر آپ کو 100 میٹر تک 1 GB کی بینڈوڈتھ کی ضرورت ہے تو آپ اس کیبل کو استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ کیلکولیٹ کر لو آپ کو کتنے کیمرے اور کتنی بینڈوڈتھ چاہیے۔ ہوم پرپس میں ون آف دی بیسٹ کیبل ہے کیٹ 5E۔ اگر آپ کو چھوٹا سا نیٹ ورک بنانا ہے، آپ کو کمپیوٹر لگانا ہے، پرنٹر لگانا ہے، 3-4 کمپیوٹر لگے ہوئے ہیں، ایزیلی
इजीली आपका काम हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। अगली केबल के बारे में हम बात करते हैं जो मोस्ट पॉपुलर है हमारी इंडस्ट्री के अंदर, वो है कैट 6। इसके अंदर भी 4 पेयर मिलते हैं। कैट 6 केबल के अंदर डाटा की जो स्पीड है वो यहाँ हो जाती है 10 Gbps। जी हाँ, हम इस केबल में 10 GB का डाटा ट्रेवल करवा सकते हैं। इसके साथ में यहाँ पर हम जितना केबल को लिंक कर सकते हैं वो है 55 मीटर। अगर आप 55 मीटर से ऊपर जाएंगे जो आपको प्रॉब्लम करेगी, तो कैट 6 को हम 55 मीटर तक ही लिंक कर सकते हैं। और ये केबल 250 मेगाहर्ट्ज की बैंडविड्थ को सपोर्ट करता है। और इस केबल में एक चीज़ हमें और एक्स्ट्रा मिलती है, कैट 6 केबल के अंदर आपने दरमियान में एक प्लास्टिक का पेयर फिल्टर मिल जाता। तो इससे क्या बेनिफिट होता है, एक तो हमारी स्पीड 10 GB हो गई। वो क्यों हो गई, जो हमने पहले बात की कैट 5e के अंदर यहाँ पर ट्विस्टेड और ज्यादा अच्छे होते हैं, जिसकी वजह से स्पीड बढ़ती है। साथ में प्लास्टिक का जो स्पीडर पेयर दिया है, इसकी वजह से जो इंटरफेस होता है वो कम होता है, कॉस्ट होता है वो कम हो जाता है। इसलिए कैट 6 केबल बहुत ज्यादा पॉपुलर है। लेकिन एक चीज जो आप हमेशा याद रखिएगा कि इसकी जो लेंथ है वो हमने 55 मीटर ही रखनी है। इसके अंदर एक प्रीमियम क्वालिटी के जो केबल आते हैं कैट 6 के अंदर, उसमें क्या होता है कि इसके ऊपर एक शील्ड लगी होती है। कई बार जब आप केबल को ओपन करते होंगे या मार्केट से परचेज करते होंगे तो आपने इसके ऊपर शील्ड फॉइल आपने लगी देखी होगी। कई बार जब आप केबल को ओपन करते हैं तो आप देखते होंगे कि इसके अंदर एक शील्ड फॉइल लगी होती है। शीट फॉइल क्या काम करती है, जो आउटसाइड इंटरफेस आता है जब भी आप नेटवर्क के अंदर काम कर रहे हों, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे मैश कनेक्शन हैं, वहाँ पर बहुत सारे केबल्स हैं। तो इन केबल्स की वजह से भी डाटा के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, इंटरफेस होता है। इस वजह से अगर केबल पर शील्ड लगा दिया जाए तो इस इंटरफेस को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। तो जो प्रीमियम लेवल के जो केबल होते हैं इनके ऊपर शील्डेड होती हैं, और जो UTP और STP जो वर्ल्ड यूज होता है वो इनके लिए ही होता है। जो UTP केबल होते हैं इनके अंदर आपको शील्ड नहीं मिलेगा, यानी ये अनशील्ड ट्विस्टेड पेयर कहलाती है। और STP शील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल कहलाती है। इस केबल में आपको शील्ड मिलेगा, यानी जिस केबल में आपको शील्ड मिलेगा वो STP कहलाएगी, और जिस केबल में आपको शील्ड नहीं मिलेगा वो UTP केबल कहलाएगी। दोस्तों अब हम बात करते हैं कैट 6A के बारे में। जी हाँ, कैट 6A ज्यादातर हम यूज करते हैं IP कैमरास के अंदर, यानी 10 Gbps की आपको स्पीड मिल जाएगी। एक केबल पे इतना ट्रांसफर आप डाल सकते हैं। इसके साथ साथ में यहाँ पर आपको जो एक्स्ट्रा मिलता है वो है इसके लेंथ। यहाँ पर आपकी लेंथ हो जाएगी 100 मीटर की। इसके अंदर भी प्लास्टिक का जो स्पीडर मिल जाएगा। इसके अंदर भी आपको UTP और STP दोनों की ऑप्शन मिलेंगी। अगर प्रीमियम केबल है तो वहाँ पर आपको STP यूज कर सकते हैं। अगर आप रेगुलर केबल यूज करना चाहते हो तो UTP केबल यूज कर सकते हैं। वो ये होगा कैट 6A। अब कई बार आप अंडरग्राउंड वायरिंग करवाते हैं, मिसालन घर के अंदर या ऑफिस के अंदर, जो केबल है जो आप दीवार के अंदर यानी कि इसको अंडरग्राउंड कर रहे हैं, तो कंफर्म आपको कैट 6 या कैट 6A केबल ही यूज करनी चाहिए। कैट 5E नहीं करनी चाहिए, वो रिकमेंडेड नहीं है। कैट 6A के अंदर हमें एक चीज और मिलती है, वो है इसकी बैंडविड्थ। यहाँ पर आपकी बैंडविड्थ सीधा 500 मीटर तक हो जाती है। कैट 6 के अंदर 250 था और कैट 6A के अंदर 500 मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी मिल जाएगी। तो ये काफी अच्छी क्वालिटी का केबल होगा आपके लिए। अब हम बात करते हैं कैट 7 के बारे में। तो कैट 7 जो केबल है वो प्रीमियम केबल होता है, बहुत कम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको लगता है कि अगर आपका डाटा बहुत ज्यादा है और आपको एकदम अपर साइज का केबल यूज करना है, या फिर यहाँ पर आपने नेटवर्क बनाना है वो काफी मैश है और इंटरफेस बहुत ज्यादा, तो आप कैट 7 केबल यूज कर सकते हैं। कैट 7 केबल में हमें क्या मिल जाता है, इसमें जो स्पीड जो 10 Gbps की होगी, इसके साथ में हमें 100 मीटर की यहाँ पर लेंथ मिल जाती है, और उसके साथ में जो बैंडविड्थ हमें मिलती है वो 600 मेगाहर्ट्ज की बैंडविड्थ मिलती है। और ये सब ज्यादा होने के पीछे रीजन यहाँ पर ये है कि इसके अंदर जो 2 केबल्स होते हैं इनको भी शील्डेड किया जाता है, यानी कि हमारे पास में जो 4 पेयर हैं इसमें 2 के ऊपर
शील्ड किया हुआ होता है और इन चारों पेयर्स को मिला के इसके ऊपर भी शील्ड किया होता है। इसकी वजह से इस केबल की कॉस्ट भी ज़्यादा हो जाती है। ये थोड़ा हैवी केबल होता है। यहाँ आपको बहुत ज़्यादा डाटा ट्रैवल करना हो वहाँ आप इस केबल को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, अब मार्केट में एक और केबल आ गया है कैट 8 के नाम से, जिसके अंदर आप 40 Gbps का डाटा ट्रांसफ़र करवा सकते हैं अप टू 30 मीटर। अगर आप 30 मीटर केबल लिंक करेंगे तो आप इस पर 40 GB का डाटा ट्रैवल करवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो मैं Gbps और Mbps की मैं बार बार बात कर रहा हूँ इसके बारे में। तो जब भी एक नॉर्मल स्विच होता है और एक गीगा स्विच होता है, इसके बारे में आपने सुना है। अगर आप CCTV में काम कर रहे हो तो आपको पता होगा। तो Mbps के जो स्विचेस हैं इसमें आप कितना डाटा ट्रैवल कर पाओगे, सिर्फ 100 Mbps। वहाँ आपका कैट 5 केबल भी सपोर्ट करेगा और कैट 5e भी करेगा और कैट 6 और कैट ए केबल भी सपोर्ट करेगा और कैट 7 भी करेगा। लेकिन अगर आपके पास डाटा ज़्यादा है तो वहाँ पर आपको स्विच चेंज करना पड़ेगा, यानी आपको वहाँ गीगा स्विच लगाना पड़ेगा ताकि डाटा को आसानी से ट्रैवल करवाया जा सके, क्योंकि इसके अंदर का जो पोर्ट है वो गीगा पोर्ट है। जब आपका 2 GB या 10 GB का डाटा आएगा तो वो गीगा पोर्ट इसको सपोर्ट करेगी। इसलिए आज की तारीख में जितने भी लैपटॉप्स या कंप्यूटर्स आते हैं इनके अंदर लैन पोर्ट गीगा में दिया होता है। अगर वो आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में नहीं है तो एक अलग से मार्केट से गीगाबिट पोर्ट मिलता है, यानी लैन पोर्ट टू USB केबल कन्वर्टर, तो आपको उसका यूज़ करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि आज की इस वीडियो में CCTV केबल्स के बारे में काफ़ी नॉलेज मिला होगा कि कौन सी केबल कब और कहाँ यूज़ करनी चाहिए और कितने डिस्टेंस के अंदर इस्तेमाल करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।